Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 8, chapter number 8, as well as the heading of the chapter's name is gravitation. And this is physics subject. Very interesting subject. Uh, it creates lots of passion regarding systematic studies about natural events which is taking place into the nature. Okay, basically we call it as phenomena, right? Anyhow, this physics is belonging to NCRT class 11 physics, whereas the today's concept is all about 8.8 gravitational potential energy. ठीक है? And this is beta series. Uh, this is my YouTube channel, Physics Indian Professor. Okay, this is gravitational potential energy. But before proceeding to the gravitational potential energy, basically it is a complicated and a bit lengthy derivation. It is okay. Now, what I'm trying what I'm trying to explain, first of all, it is all about a gravitational field before proceeding to the gravitational potential energy. ठीक है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को प्रोसीड करने से पहले एक काम कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. ठीक है? चलो, नाउ लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, so listen up. What is gravitational field? it is the it is the region. ठीक है? ये क्या है? ये एक रीजन है. So it is the region in which a particle experiences gravitational force. ठीक है? तो हम किसके चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, छोटा वाला ऑब्जेक्ट. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, क्योंकि वो छोटे वाले ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है ना, व्हेन इट कंपेयर्ड with the distance of that object from the body which is having gravitational force. मेरी बात समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. See here, if you are talking about earth, this is earth, say for example. ठीक है? And say for example, the car is somewhere here. कार, सर कार हवे में क्या कर रही है? That is what I'm saying, no? कार को यहां तक अपलिफ्ट किया गया है, up to this distance. ठीक है? कौन से वाले डिस्टेंस तक? ये वाले डिस्टेंस तक कार को अपलिफ्ट किया गया है. Now the distance between car and the earth is very much greater. ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस का लेंथ है ना, डिस्टेंस का लेंथ, तो डिस्टेंस का लेंथ को x करके बोलेंगे एंड द लेंथ ऑफ द कार को y करके बोलेंगे. व्हेन यू कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ लेंथ बिटवीन कार एंड अर्थ, दैट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? x बोलेंगे. सो x इज ग्रेटर देन y. सो y क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द कार, लंबाई कार की, क्योंकि वही हाईएस्ट है. If you take the width of the car, it is smaller than the length of the car. So if this is greater, तो इससे भी greater क्या है? The distance between car and earth. तो इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हम कार कहते हैं, that will become particle. ठीक है? Now it is the region, क्या? Gravitational field क्या? It is the region in which a particle experiences gravitational force. Sir, अभी इसको एनसर्कल कैसे करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का? Listen up. I will put it with the green mark, my dear kids. ठीक है? See. Like this. Okay. यहां तक मान लो. Say for example, it is up to here. ठीक? Now, say for example, ये थोड़ा यहां तक है ग्रेविटेशनल फील्ड. So, gravitation is acting up to this mark. यहां तक ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है. इसके ऊपर भी है, up to this green circle. That field where
a particle is placed when a particle is placed into that field, that particle experiences gravitational force. So उस फील्ड को क्या कहते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. तो सिंपल है, बेसिक है. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? इट इज द रीजन इन विच a particle experiences gravitational force, that is called as gravitational field. ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है. सर क्या इसका इंपॉर्टेंट कुछ है? Yes. While solving the derivation of gravitational potential energy, you will come to know that कि gravitational potential energy का derivation जब solve करेंगे, gravitational field का importance क्या है. ठीक है, चलो. Is this clear? चलो, this is over. Okay. Now listen up. Gravitational potential energy क्या है? The gravitational potential energy. The gravitational potential energy at a point, ठीक है, in the gravitational field. Gravitational potential energy at a point, ठीक है, in the gravitational field. क्या है वो? Is the work done. Is the work done in displacing the body from infinity to that point. Now listen up my dear kids. एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है. दिस इज योर अर्थ, से फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ठीक है. नाउ यू नीड टू ड्रॉ अ ग्रेविटेशनल फील्ड विद द ग्रीन कलर, क्योंकि मैंने आपको इसी से बताया था, ठीक है. से फॉर एग्जांपल दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड. थोड़ा सा बड़ा करते हैं. ओके. Now see here, gravitational potential energy at a point in the gravitational field. ठीक है, एक पॉइंट है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है. वो कौन सा है देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, सो दिस इज योर रेडियस. तो रेडियस कितना है, क्या है, उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक. नाउ लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ. मैं एक काम करता हूं, this is color, I will take the different. This is radius r, ठीक है. This is radius r, this is surface of the earth. ये आपका surface of the earth है, ठीक है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P बनाते हैं, ठीक है. So I will take this as I'll take this as height h, है ना. इस पॉइंट तक हाइट h बन जाएगा, क्योंकि इफ यू आर टेकिंग ऑन द राइट साइड इट डजंट मीन दैट कि अर्थ के राइट साइड में, अर्थ से आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, यू आर मूविंग इनटू द स्काई. मेरी बात आप समझ रहे हो? अर्थ से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, आइदर दिस डायरेक्शन और कमिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, नीचे या बैकवर्ड डायरेक्शन, यू आर मूविंग टू द स्काई. क्या मैं बात जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं? आपको कुछ बात समझ में आई? ओके, दिस इज पॉइंट P. Okay, this is very much clear, right? Now listen up. So if this is point P और मान के चलो ये कोई
इंफिनिटी है, ये कोई इंफिनिटी है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड is the work done in displacing the body from infinity to that point। मतलब इस पॉइंट तक एक बॉडी इंफिनिटी से पॉइंट पी के और आना। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कॉल्ड एज, मतलब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसीलिए तो इंफिनिटी से इस पॉइंट को आ रहा है वो अट्रैक्ट होते हुए। because intensely gravitational force can attract objects into this circle। देखो बच्चों एक चीज होता है, I'll take a rope, मैं रोप लूंगा और मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ओके, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसने रोप पकड़ा है, ठीक है, so I can drag him towards me very easily। now in second scenario I will hold a rope और मैं 50 मीटर डिस्टेंस पे किसी बंदे को पकड़ने के लिए बोलूंगा, 50 मीटर of distance, I will drag this person। now it is difficult to drag this person क्योंकि he is not under the influence of me, or else he is not under the sphere of influence of me। मतलब जो मेरी ताकत है मैं एक लिमिटेड डिस्टेंस तक यूज कर सकता हूं। एट द इंफिनिटी माई वर्क should be more, my force application should be more। are you getting my point, my dear kids? yes। so same way, when the object is at infinity, gravitational force is present there, but not in the intense way। but inside the gravitational field you can observe the intensity of gravitational force। इसीलिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बोला, बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एलैबोरेट कर रहा हूं। so to bring from infinity to this point, when this object comes from infinity to point p, there will be storing of energy। किस तरह की एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहां से वहां तक वर्क हुआ है ना, इंफिनिटी से वो पॉइंट तक वर्क हुआ है, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? पक्का? फ्रॉम द बॉडी, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो उसी को हमने बोला कि एनर्जी उसके बॉडी के अंदर स्टोर हो गई, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। वर्क कह लो या एनर्जी कह लो, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क से एनर्जी में कन्वर्ट करते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपने उतना वर्क उस चीज पे किया तो एनर्जी वहां पे स्टोरेज हो गई। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसीलिए हमने बोला दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल, ठीक है। इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आपको पता चल गया। ओके, फाइन। सीमा चौहान, वैष्णवी मठ, परिजैन, सृष्टि नांदियाल, फाइन, वेरी गुड। नाउ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
यस, नाउ लिसन माय डियर किड्स, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। आई टेक द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उसी के हिसाब से पूरा डेरिवेशन को मैं डिराइव करूंगा। ठीक, चलो। दिस इज अर्थ, सो आई एम पुटिंग अ लाइन। मैं एक लंबा सा लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। देखेंगे ये चीजें क्या है, वन बाय वन आई एम गोइंग टू इलेबोरेट एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या है, आपका सेंटर। एंड ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक, दिस इज कैपिटल आर। ठीक, नाउ द पॉइंट पी, this is your distance point P. What is this? ये आपका हाइट h है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस d है। ठीक, चलो, this is your distance d. Now the object is placed at point A carrying mass m, ठीक है। एंड the distance from this point to this point is the distance naming called x, इसको हम लोग x बोलेंगे, ठीक है। नाउ कोई इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रखते हैं, दिस पॉइंट आई टेक इट एज b, ओके। So this is from A to B, the distance called dx, ठीक है, छोटा वाला डिस्टेंस है dx। तो by this figure we came to know so many things। तो एक एक चीज को हम लोग इलेबोरेट करते हुए जाएंगे, ठीक है। सो इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एज यू कैन सी, क्या क्या चीज दिए हैं, इलेबोरेट करते हुए निकलेंगे, ठीक है। सो कैपिटल M जो है, हियर इट इज, कैपिटल M is the mass of the earth, ठीक है। कैपिटल M क्या है, इट इज द मास ऑफ द अर्थ। इन जनरल कैपिटल M का मतलब क्या होता है, इट्स अ ह्यूज बॉडी, ठीक है। स्मॉल m का मतलब छोटा बॉडी, ठीक। सो स्मॉल m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड एट द पॉइंट कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए पे स्मॉल m को रखा गया है यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, ठीक। O इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। सिंपली आई एम मेकिंग द इलेबोरेशन टू गेट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। सो कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर इज द रेडियस of the earth। So basically this type of derivations or questions, it will be asked for 5 marks, ठीक है। चलो, कैपिटल P is the point at a distance, d, ठीक है, from the center of the earth। Center of earth, is it okay? And
ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं रब कर दूंगा बच्चों। तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, सो दोज आर पॉइंट्स विच इज टेकन एज अ रेफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि वहां पे मोमेंटम हो रहा है स्मॉल मास m का, ठीक है। वी आर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, सो ए एंड बी आर the 2 points separated by small distance dx। सर आपने तो दिखाने के लिए dx तो बहुत बड़ा दिखाया सर। You know what, my dear kids, if we don't show it properly dx distance into the diagram, you'll get confused. So ये दिखने में बड़ा दिख रहा है, but it is very much smaller distance, बहुत ही छोटा distance, ठीक है। So you need to remember that where x is the distance, x is the distance between the earth and the particle। Is this clear? क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? फाइन, नाउ विल प्रोसीड विद द डेरिवेशन। तो हमने क्या फिगर में लिया है? वी हैव सिंपली सॉ दोस थिंग्स, हमने देखा। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, देयर इज अ फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन, फोर्स है अर्थ एंड यूनिट मास बॉडी। तो पहले आपने डायग्राम लिया, फिर उसके बाद जो फिगर में गिवन गिवन चीजें थी वो चीजें ली आपने। नाउ देन कंसिडरेशन कि क्या है। ओके, दिस इज ओवर। सो वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर प्रेजेंस है इस छोटे वाले मास में, सी हियर आई एम गोइंग टू मेक दैट मार्क, ये छोटे वाले मास में और कैपिटल मास में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इज दिस क्लियर? सो वी नीड टू ड्रॉ an expression, capital F is equals to capital G capital M small m। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? सेंटर एज वेल एज स्मॉल मास m, दैट इज डिस्टेंस x स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला क्या आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो m1 की जगह में क्या है? कैपिटल M है, m2 की जगह में स्मॉल m है, d के बदले में x है। सो वी मेड दिस इक्वेशन, राइट? So is this clear? So this is equation number 1। चलो अच्छी बात है। So work done। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी यूनिट मास पे अगर अप्लीकेट होता है तो उससे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर चल रहा है। सो द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज क्या है, ठीक है। सो वी नो दैट वर्क डन का जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। क्या ये सही है? W is equals to F into D. How many of you know this formula? How many of you know?
यस, ओके, सो लिसन अप। सो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ना, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ना, ये वाले डिस्टेंस पे हो रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। इज इट विजिबल माय डियर किड्स? ठीक है। सो द डिस्टेंस कितना है ए टू बी, दैट इज dx है। कितना है? dx है, छोटा वाला। सो जो फोर्स लगेगा ना, वो तो छोटे वाले डिस्टेंस पे मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? फोर्स जितना लगना है उतना ही लगेगा, बिकॉज द मोमेंटम इज कंटिन्यूअस। मतलब ए से लेके आप कहां तक लेके जा रहे हो? पॉइंट पी तक। फॉर स्मॉल डिस्टेंस यू आर अप्लाइंग द सेम फोर्स, फॉर लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी। देखो, ए से लेके पी तक मूव करने के लिए या ए से लेके बी तक मूव करने के लिए दोनों जगह फोर्स एक ही लग रहा है। बट ये जो डिस्टेंस है ना ए टू बी, दिस इज स्मॉलर डिस्टेंस, बट फ्रॉम ए टू पी इट इज लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है। बहुत सारे dx मिला के, बहुत सारे dx मिला के इंटीग्रेट करने के बाद एक डिस्टेंस मिलता है हमें, विच इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एपी। तो फोर्स दोनों जगह सेम लग रहा है। सो आई हैव केप्ट द फोर्स एज इट इज, बट द वर्क डन, when you are making the multiplication of force with the small distance, the work done will be छोटा वाला work done, क्योंकि काम आपने छोटा किया। फोर्स जितना लगना है उतना ही लग रहा है, बट द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर, तो काम भी तो छोटा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? सो शैल वी राइट dw is equals to f into dx? क्या हम लिख सकते हैं? dw is equals to f into dx. so this is clear. ठीक है, ओके, चलो हो गया ये। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 इन 2। तो इक्वेशन 1 अगर 2 में डाला जाए, वी गेट, हमें क्या मिलता है? ठीक है। सो कीप dw एज इट इज, है ना। तो फोर्स के बदले में आपने क्या डालना है? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx। ओके, सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3। नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, work done in displacing, work done in displacing the particle from x is equals to infinity to x is equals to distance d। ठीक है। तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को a से लेके p तक घुमाना है, तो इंफिनिटी, ये तो इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, और ये क्या है? डिस्टेंस d है। तो एक बार x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से लेके x इज इक्वल्स टू d तक हमें क्या करना है? मूव करना है। ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू इंटीग्रेट द होल डिस्टेंस। मैंने बोला ना, ए से लेके पी तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? यू नीड टू इंटीग्रेट द वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यू विल गेट टोटल वर्क डन कितना है। ठीक है। बट द इनिशियल आपने स्टार्ट करना है इंफिनिटी से, कहां तक? फाइनल पॉइंट डिस्टेंस डी तक। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन सिंपली इलेबोरेट द होल इक्वेशन। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन को मैं यहां पे लूंगा, w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू d, दिस इज dw, राइट। नाउ dw का वैल्यू कितना है देखो, इफ यू सी दिस, dw का वैल्यू कितना है? dw का gm बाय x स्क्वायर इनटू dx। ठीक है। चलो, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू d, कैपिटल G कैपिटल M small m divided by x square into dx. This is w. Is this clear? Now the constant factors are gravitational constant capital M small m. तो तीनों को आपने क्या करना है? बाहर निकालना है। So infinity to d into 1 by x square into dx। ठीक है। So is this clear?
इतना तक आपको करना है। नाउ इज इक्वल्स टू सिंपली मैथमेटिक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होगा? सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें क्या करना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू d x रेज टू -2 इंटू dx, ऐसे लिखना है। वी नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx इज इक्वल्स टू x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो बच्चों, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? क्या करना है फॉर्मूला, अब एक बार बताऊंगा मैं आपको, फिर से बताऊंगा फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx is equals to x raised to n+1 divided by n+1. So you need to write this formula. ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे फिर, इसके बाद क्या करेंगे? So you can apply here the same formula, capital G capital M small m. So x raised to -2 + 1 divided by -2 + 1, ठीक है। तो इसको क्या आएगा, रेंज आएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल d, द सेम रेंज अकॉर्डिंग। ओके माय डियर किड्स, एज आई एक्सप्लेन दैट कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन का है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का जो ऑर्डर है ना इंटू dx, सो इट कैन बी रिटन x रेज टू n+1, मतलब n के साथ +1 जोड़ना है पावर के साथ, डिवाइडेड बाय दिस पावर यू शुड टेक इन द डिनोमिनेटर, विद दैट अगेन यू नीड टू मेक +1। यही टर्म को आपको नीचे लिखना है, रखना है, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? तो इतना तो हो गया अभी। इसके बाद जो है ना, यही चीज को आपको यहाँ पे एप्लीकेट करना है। नाउ सी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 मींस n की जगह क्या है, -2 है, इनटू dx। सो इंस्टेड ऑफ n यू कैन राइट -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। देखो कितना होता है, बताओ मुझे, फट से बताओ कितना होगा ये। सो दिस कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हो x रेज टू -1 divided by -1. So this can be written as minus x raised to -1 divided by 1. So this can be written as minus x raised to -1. So अभी क्या हो गया, -1/x, -1/x. Is this clear? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Is this clear my dear kids? Now yes we'll proceed. अभी इसके साथ रेंज है बच्चों, रेंज। सो रेंज को सब्स्टिट्यूट करना है, we need to put it the values of ranges. सर ये कैसे करना है, थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा हमें लगता है, बट दिस इज वेरी मच इजी, ठीक है। लिसन अप माय डियर किड्स, इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। ऑन द LHS साइड वर्क डन W है, ठीक है, तो वो चीज को याद रखेंगे। नाउ यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू -1 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू d, ठीक है। सो listen up, is equals to capital G capital M small m. So this can be written as inside the bracket -1/x infinity small d, ठीक है, is equals to ये माइनस हो गया, कैपिटल G हो गया, कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। नाउ दिस इज 1/x इंफिनिटी टू d, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये इतना हो गया। नाउ it can be written as is equals to minus capital G capital M small m as it is. तो यहाँ पे देखो बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। कैपिटल डी स्मॉल डी क्या होता है, ये ऊपर में, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये जो अपर लिमिट है ना, इसको पहले लिखना है। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, 1/x का 1/x फॉर्मेट कैन बी रिटन एज when you substitute x as x2, ठीक है, या x अपर लिमिट माइनस x लोअर लिमिट। तो x अपर लिमिट के जगह में आपको क्या डालना है, आपको पता है, इट शुड बी d, एंड x लोअर लिमिट के जगह में क्या डालना है, इट शुड बी इंफिनिटी, ठीक है। सो यू नीड टू राइट लाइक दिस, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। तो इनसाइड दिस व्हाट यू नीड टू राइट, आपको क्या लिखना है बताओ मुझे, फट से बताओ, आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी। सो x अपर लिमिट के जगह में यू नीड टू राइट 1 डिवाइडेड बाय
वेट 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी माइनस 1 डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट की जगह में इंफिनिटी। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, क्योंकि देखो अपर लिमिट की जगह में क्या है, स्मॉल डी है, लोअर लिमिट की जगह में इंफिनिटी है, तो उसी जगह में हमने सेम चीजें डाली है। ओके, लिसन अप नाउ, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, so 1 divided by d as it is, 1 by infinity means 0, so minus 0 is nothing, कुछ भी नहीं। तो आपने क्या करना है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी, सो दिस इज w। तो आपको इनिशियली इतना मिल रहा है, w इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या मिला, इतना मिला। नाउ स्मॉल d इज इक्वल्स टू क्या है, बताओ मुझे, स्मॉल d इज इक्वल्स टू व्हाट? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने आपको डायग्राम बताया था, क्या डायग्राम बताया था, आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम लाइक दिस, मैंने ऐसे डायग्राम प्लेस किया था, दिस इज रेडियस, यहां तक क्या था, ये था आपका डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए, सो वेयर एज द यहां तक जो डिस्टेंस है ये इंफिनिटी डिस्टेंस है, तो हमने यहां से लेके यहां तक इसको dx बोला। ओके, एंड व्हेन द दिस इज फॉर स्मॉल वर्क डन dw, ठीक है, अगर A से यहां तक बोला पॉइंट P तक, सो दिस इज वी आर टेकिंग द डिस्टेंस D, मतलब इंफिनिटी से लेके डिस्टेंस D तक, यही रेंज बोला। बट इफ यू आर मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अर्थ सरफेस, यहां तक बोला, तो अभी क्या हो जाएगा, ये चेंज फ्रॉम x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल्स टू कैपिटल R, उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। इज दिस क्लियर? अप टू द रेडियस r के लिए, सो दिस इज द वर्क डन, ये आपका वर्क डन है। नाउ ऑल वर्क डन इज ऑकरिंग, सारा वर्क डन जो हो रहा है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सिंस अर्थ इज ट्राइंग, इज माय लो माय डियर किड, is my voice is low? Probably not. Okay, no, fine, now listen up, Daneshwari, somewhat problem is there with your device, because Shrishti Nandyal, Priyanka Rathod, Ashwini Rathod, Parijain, Daneshwari, no, Vaibhavi Pawar, Priyanka Rathod, okay, Vaishnavi Mat, Lavanya Nayak, they are saying no. Okay, the work done, whatever आप infinity से रेडियस तक वर्क करोगे, आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको इक्वेशन क्या मिला, so what you got, what you got, so work done when it is stored as a energy into a small mass m, तो ये जो आप यहां से लेके see here, from here when you are bringing this body up to here, it is due to gravitational force, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, into that body, when that body reaches the ground surface or earth surface, that work done is stored in terms of potential energy, ठीक है, ये W क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। तो इस U को हम लोग क्या करके बोलेंगे, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R, ठीक है, so this is your gravitational potential energy expression. Is this clear, my dear kids? Is this clear? Sir, what is you know what is negative sign indicating here? सर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। आपने तो लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया, ये वाला एक्सप्रेशन जो है सर आपने लिख दिया
यू मेड इट फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो माइनस साइन का सिंबल है ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, फॉर व्हाट पर्पस? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि वर्क जो हो रहा है मास m पे, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात समझो बच्चों। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, फोर्स, ठीक है, किसी भी फोर्स के बारे में बात करते हो, सो बेसिकली फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर ड्राइंग अर्थ, ठीक है, सो दिस इज रेडियस आर। तो कोई बॉडी यहां पे है, तो अगर मैं इसको अर्थ सरफेस से बाहर निकालना चाहूंगा, इफ आई वांट टू मूव इट अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? बेसिकली इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी इनटू दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो भी हमें मिलता है वैल्यू, so that is providing negative since we are trying to accelerate that body towards the earth, ठीक है। so gravitational potential energy store हो रहा है and the value we are getting negative because gravitational force is operating against the acceleration of the body which is moving away from the gravitational field। तो कोई बॉडी अगर बाहर जाना चाहता है, अगर उसको वो ग्रेविटेशनल फोर्स से पीछे खींच के गिरा देता है, सर व्हाट what we need to do to escape the gravitational force, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है? You need to carry the minimum speed of this one। तो ये वाला अगर minimum speed आपके पास है, so you can escape the gravitational force, or else it will drag back to the body which is moving away from the gravitational force, ठीक है। Is this clear? Probably this is very much clear my dear kids। मैंने बहुत ही सही तरीके से ये चीज को आपको समझाने की कोशिश की। समझ गए, वेरी गुड। सो दिस इज ओवर। तो मैंने अभी बोला कि किसी चीज को अगर अगर ये वाले स्पीड से हम रन करवाते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, से फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको इतना स्पीड दिया गया है, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, सो यू विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, इससे निकल के बाहर चले जाओगे आप विद दिस स्पीड। सर ये वाले स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एस्केप स्पीड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एस्केप स्पीड। सो ये स्पीड क्या है? इट इज द minimum, it is the minimum speed with which a body is projected in order to escape from the gravitational pull of the earth। तो ये क्या है आपका? इट्स अ मिनिमम स्पीड। वो मिनिमम स्पीड कितना है? इतना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड एज एस्केप स्पीड। तो ये जो एस्केप स्पीड से जब कोई बॉडी प्रोजेक्ट होता है इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आपका ये अर्थ है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे होता है। इसके अपोजिट में आप अगर फोर्स अप्लाई करना चाहते हो, जिस फोर्स से आपको जो वेलोसिटी मिलती है, वो वाली वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? वो वाली वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, जिसकी मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। देन
you will get the escape speed to escape the gravitational pull of the earth. ठीक है, so is this clear? क्या ये फंडा क्लियर हो गया? So एस्केप वेलोसिटी मिलने के लिए किसी बॉडी के अंदर एस्केप एनर्जी स्टोर होना बहुत जरूरी है। या सो व्हाट इज दिस बेसिकली? इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या है एस्केप एनर्जी? ये एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है with which a body is projected in order to escape from the gravitational pull of the earth। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जिससे आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द gravitational pull of the earth। So minimum energy you need to escape the gravitational pull of the earth। yeah energy is needed, no? मेरे को एक बात बताओ प्रियंका राठौड़, ये पेन है, मैं इसको फेंकना चाहूंगा, फेंकने की यू नो इफ आई वांट टू थ्रो दिस, थ्रो तो मैं बाद में करूंगा, इसको होल्ड करने के लिए भी मेरे पास एनर्जी चाहिए। इफ आई डोंट हैव एनी एनर्जी इनसाइड माय बॉडी आई कांट होल्ड दिस प्रॉपर्ली, ये नीचे गिर जाएगा थपाक, मेरा हाथ भी नहीं उठेगा। सो टू होल्ड इवन एन ऑब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ओवर दैट, तो उसके लिए आपके पास एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात आपको समझ में आई बच्चों? इट इज गिवन बाय, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो वीई जो है, ये वीई क्या बताता है? इट इज बेसिकली एस्केप स्पीड। ठीक है, ये क्या है? एस्केप स्पीड। ओके, सो नाउ एस्केप स्पीड आपको क्या है पता चल गया। सो बेसिकली एस्केप एनर्जी हमने जाना, फिर एस्केप स्पीड हमने जाना, बट वी डोंट नो द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए। वी जस्ट सॉ द डेफिनेशन ऑफ एस्केप स्पीड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ए बॉडी will be escaped from gravitational pull of earth only when if एक कंडीशन है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बेसिकली यहां पे अगर हम अर्थ ऐसे ड्रॉ कर लें और किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे हम रख लें, सो दिस इज योर क्या है? gravitational field। okay, now to escape this gravitational field by this body from this sphere of influence of the earth you need escape energy। तो escape energy चाहिए क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, escape energy
of a body is equals to gravitational potential energy. मी काय भी उडावडी करू नका, सगळं पाडवा पडू इथे शांत. सो एस्केप एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो एस्केप एनर्जी ऑफ अ बॉडी के लिए आपको पर्टिकुलरली कौन सी वाली एनर्जी चाहिए बताओ मुझे. सो बेसिकली वी नीड दिस काइनेटिक एनर्जी. सही है. यस. सो काइनेटिक एनर्जी आई एम गोइंग टू राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE. नाउ इसमें आप क्या करोगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है. सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. नाउ वी आर नॉट टेकिंग माइनस हियर. बताओ क्यों? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ. हम लोग जब बाहर से इंफिनिटी से इधर आ रहे थे इट वाज माइनस, बट वी आर मूविंग अवे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? इट बिकॉज वी आर हैविंग दैट मिनिमम स्पीड, हमारे पास एक्सेलरेट हो रहा है every time it is increasing, so that is why we are able to escape the gravitational pull of the earth. तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस का क्या बन गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया. ये देखिए ये माइनस था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डायरेक्शन माइनस था, इन दिस डायरेक्शन क्या रहेगा, प्लस रहेगा. सिंपल है. सो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिला है तो एस्केप हो रहा है, एस्केप हो रहा है मींस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ से एस्केप हो रहा है. सो दिस विल बिकम पॉजिटिव. So small m get cancelled. Now v square is equals to 2 into capital G capital M divided by r into r by r. ठीक है, into r by r लिखा मैंने. क्या लिखा? into r by r. सर आपने ऐसे क्यों लिखा सर? I will tell you why. ऐसे क्यों लिखा मैं बताऊंगा इधर. ठीक है. So v square becomes ve square because v to the base e मतलब escape speed के बारे में बात कर रहे हैं. So 2 as it is capital G capital M divided by r square into r. What is this? ये क्या है? Small g. कितने लोगों को याद है बच्चों? Small g. Small g is equals to gm divided by r square. We all know that this is the formula for acceleration due to gravity. ठीक है. ve square. So ve is equals to under root 2gr. So this is the formula for escape speed. Is this over? So ये रहा आपका derivation for escape speed. So this is over my dear kids. तो कल के लिए बस एक आखिरी derivation बचा हुआ है. That derivation will be energy of a orbiting satellite. मतलब एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट करता है किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड इट? इज इट फाइन? यस. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंसली माय डियर किड्स. ओके, या. सो विल मीट टुमारो. बाय बाय एंड जय हिंद. सी यू एट द सेम टाइम टुमारो.